Hello and hi everyone. Welcome back to my channel. This is a session on geography, and as was very much demanded, my comments was full of this demand. But yes, I have brought this chapter, Geography of Class 7th, and the very first chapter of ICSE, which is presented by me, Simran Priya. Moving ahead, this is your most demanded chapter, that is chapter number 1, the topographical map, and this is part A. It means bacha, I have divided this session into two parts, that is part A and part B. Okay, ये आपका part A है, फिर मैं जल्दी आपका part B भी लाऊंगी. This is from the book Middle School Geography, Frank EMU Books. Now what you can do, call all your friends, ask everyone to join in. I would like to say hi to Nirmal Kumar, Diksha, Sujit Gupta, Sanjay, Akanksha Kumari, Rajiv Jha, Priyanka Yadav, Nilesh Ranjan, everyone. Hello and hi everyone. Welcome back to my session, bacha. Chabi kheta na lo bacha. Now, this is from this book and the most awaited session. So we must not wait more time and call all your friends, call everyone that you know from 7th standard. आप सभी को जल्द से जल्द बुलाइए ताकि सब कोई भी ये सेशन मिस ना कर पाए. ओके, आप लोगों को सबको पता है कि सबको इसमें दिक्कत आ रही है. Let us for once and all clear all dikkats. Okay, now we will be moving forward with the introduction to the tropical map, as what is tropical map and what does it represents. हम लोग मैप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं. We know political map, we know physical map, India का map, world का map. हम लोग ऐसे मैप्स को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन what is this new term of topographical map? ये क्या चीज है? Hello Rajiv Jha, hello Ishika Sinha. Thank you so much bacha for joining in. Then we will be discussing tropical map in detail. That is its history हम लोग discuss करेंगे. What is its uses हम लोग वो discuss करेंगे. इसकी history ये किस तरीके से बनी और क्या इंडिया में कैसे introduce होती है वो. And then we will learn about scales and different kinds of scales that are used in a topographical map. Okay, so this is for A section. A part में हम लोग इतना discuss करेंगे. Is it, or are you all clear with this? Now, yes, very good. Now, hello, hi, Ajay Singh. Thank you so much, sir, for visiting in. Till when I introduce myself, go, bacha, call all your friends as message in your group, all the chat, जहाँ पे भी you know your community. Now go ahead and वहाँ पर जाकर आप message कीजिए. और आपको क्या करना है? Now till then I will introduce myself first. So my name is Simran Priya. I have done my graduation and my masters from Delhi University, and currently I am teaching in an ICSE school, bacha. Now before starting my session, let me tell you that if you are new to my session, please do subscribe to it. And secondly, you will get a link in the description box. नीचे दिए गए आपको आपके स्क्रीन पे इस तरीके का एरो दिख रहा होगा. जस्ट उस पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें you have the link of my Telegram channel, बच्चा. So you can also follow me on my Telegram channel, where I will be soon uploading all the notes and PDFs, and also I will be conducting quizzes there. So you join that as quickly as possible. Moving ahead, you can also follow me on Instagram if you want to be connected on a social site, so you can ask me anything. I will be also taking live sessions there, so you can also follow me on Instagram. So these are the two platforms जहाँ पर आप follow कर सकते हो. मेरा mail ID भी दिया हुआ है. If you want to write me something, you can write on my mail. Okay, am I clear? Thank you so much, bacha. Moving ahead, let's start with this chapter of topographical map. और ये अजीब से दिखने वाला ये मैप क्या है, इसे समझते हैं. Okay, now I have the participants has grew. Okay, thank you so much, Bandana, Anu, thank you so much for joining in, bacha. Thank you, Nirmal, for following me on Telegram and Insta. Moving ahead, let's start with the introduction. Now, what is a map?
Map are used to represent the Earth's reality. Now you all know कि map बच्चा क्या है? Map जो Earth की जो reality है, Earth कैसा दिखता है, कहाँ पर कौन सी water bodies है, कहाँ पर कौन सा land है, इन सारी चीजों को हम लोग एक पेपर फॉर्म में जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, so that is map. ये आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा. What is map? कि map क्या है? अर्थ को, जो एक्चुअल अर्थ है, उसको जब उसका रिप्रेजेंटेशन वी डू ऑन अ पेपर, सो ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, दैट इज अ मैप. And it is a valuable tool for a geographer. So if अगर एक geographer है who is exploring, who is knowing about the geography, who is studying geography, so उसके लिए मैप एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ये हमें अलग अलग फिजिकल डिविजन, फिजिकल फीचर्स, जैसे कि हम लोग बच्चा यूरोप का मैप किया था, उसकी चीजों के बारे में बताता है, कहाँ पर किसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, कहाँ पर कौन सा स्टेट है, कहाँ पर कौन सी सिटीज है, कहाँ कौन सी वाटर बॉडीज है. इट टेल्स अस ऑल अबाउट इट. नाउ मैप इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम. Now, because map in itself is talking to us, that's why we call it a communication system. क्योंकि मैप बच्चा जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है मैप में, वो हम क्या कर पा रहे हैं, वो हम देख पा रहे हैं, उस चीज को हम समझ पा रहे हैं. सो वो हम मान सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन का सिस्टम है. जैसे अभी आप मेरी को देख पा रहे हो, मुझे मैं जो बोल रही हूँ वो समझ पा रहे हो. सो मैं यहाँ पर अपना लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश, टू कम्युनिकेट माई सेल्फ. सेम इन द सेम मैनर मैप भी अपने आपको यूज करता है टू कम्युनिकेट इटसेल्फ. कैसे? In the map, I would like to say hello to Janvi. Thank you. Good afternoon, bacha. Thank you so much for joining in. Now, map क्या करता है? Where the sender, that is the cartographer, मैप को जो बनाने वाला होता है बच्चा, जो उसमें वो बना रहा है मैप को, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं. There will a very good evening, बच्चा. So where a sender sends or represents some useful information or on two-dimensional surface. So जब एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, जो अपने इंफॉर्मेशन को बच्चा उस पे लिख रहा है. ओके, ऑल द इंफॉर्मेशन मैप में, अगर आप समझ लो कि मैप में इंडिया का मैप ऐसे ड्रॉ किया जा रहा है, और इस इंडिया के मैप में जो मैप को बना रहा है, वो यहाँ पर बाउंड्रीज बना रहा है कि ये इंडिया की बाउंड्रीज है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है. So ये सारी चीजें that is represented gives useful information. So these all things are giving some useful information. So इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं, ये information को dimensional surface पे वो present कर रहा है. Okay, I will dimensional बच्चा, two dimensional मतलब 2D surface. 2D surface क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्क्वायर इज अ 2D surface, जिसमें हम 2 डायमेंशन ही देख पा रहे हैं. लेकिन अगर हम उसका लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट भी देख ले बच्चा, जैसे कि क्यूबॉइड में हम उसकी लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट भी देख लेते हैं, तो वो बन जाता है 3D surface. इसमें हम बस लेंथ और ब्रेथ देख पा रहे हैं, so वो बन जाता है 2-dimensional surface. Okay, is it starting? Is it okay? You have understood this? So मैप को जो बनाता है, जो सेंडर है इंफॉर्मेशन का, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं. वो किस तरीके से सेंड करता है इंफॉर्मेशन को? सर्टेन हेल्प ऑफ सर्टेन सिंबल्स. ठीक है, हम लोग अपने बी पार्ट में पढ़ेंगे what are the several symbols. जैसे कि ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द वाटर बॉडी, ब्लू कलर वाटर बॉडी दिखाएगा बच्चा. ब्राउन कलर क्या दिखाएगा? माउंटेन्स दिखाएगा, है ना. ब्लू कलर वाटर बॉडीज दिखाएगा, ब्राउन कलर माउंटेन्स दिखाएगा. वैसे ही ये चीजें क्या दिखाएंगी? ये चीज टेम्पल दिखाएगी. सो ये ऐसी सारी चीजों को हम सिंबल्स और एलिमेंट्स बोलते हैं, जो हमें कार्टोग्राफर देता है. इज इट क्लियर बच्चा? Now,
Hello, Akanksha. Hello, Sachi. Thank you so much for visiting in. Am I audible and visible to all of you? Can you please let me know that am I audible and visible to you or not? Now, moving ahead, such geographical symbols are the language or the medium. अब जो कार्टोग्राफर बच्चा, जो कार्टोग्राफर जो सिंबल्स और जो सिंबल्स जैसे कि अगर उसे टेम्पल दिखाना है, अगर उसे कोई वाटर बॉडी दिखाना है, वो ब्लू कलर से दिखा रहे है ना, सो वो जो सिंबल्स और एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं हमें हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, दैट इज द लैंग्वेज और वी कैन से दैट इज द मीडियम थ्रू विच द कार्टोग्राफर इज giving us the information. Okay, thank you so much everyone for letting me know. Yes, I am audible and visible. Now, used by the cartographer, that is the sender, to communicate the desired information. Very simple. सिंपल है. मैप क्या है? मैप हमें अर्थ की रियलिटी दिखाता है. मैप्स में हम लोग डिफरेंट सिंबल्स और एलिमेंट्स यूज करते हैं. जो कौन हमें देता है? सेंडर देता है, जो इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा है बच्चा. जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो मैं क्या हो गई? सेंडर हो गई. आप क्या हो गए? रिसीवर हो गए. सो अगर मैं मैप को मैं अपने सिंबल्स और ये सारी बनाऊं और आप उसे पढ़ने की कोशिश करो तो मैं हो गई कार्टोग्राफर, आप हो गए रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. इज द मैप रीडर और व्यूअर, और जो मैप को रीड कर रहा है या फिर मैप को व्यू कर रहा है, दैट पर्सन इज द मैप रीडर और द मैप व्यूअर. समझ गए यहाँ तक? नाउ दिस पर्सन, अब देखो हमारे पास ये मैप है, इसे किसी कार्टोग्राफर ने इसमें इंडिया का मैप बनाकर दिया. ठीक है, अब इसमें इसने बताया यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, या ये इंडिया है. ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा? हम लोग इस मैप को देखकर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो हम लोग क्या हो गए? हम लोग मैप रीडर हो गए या फिर हम लोग मैप व्यूअर हो गए, जो कोशिश कर रहे हैं उसे इंटरप्रेट करने की. इसका मतलब समझने की. इंटरप्रेट करना मतलब समझने की कोशिश करना विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम यूज्ड इन इट. सो जो भी उसमें सिंबल्स या सिस्टम्स यूज किए गए हैं उसके थ्रू उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा. सिस्टम नहीं होगा, सिंबल होगा. सो ऑल द सिंबल्स जो उसमें यूज किए गए हैं उससे उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ तक एकदम क्लियर है, एकदम कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है. एक सेंडर है, एक रिसीवर है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, और एक सेंडर जो है वो बना रहा है मैप को, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं, और जो उसे पढ़ रहा है, जो उसे देख रहा है, जो उसे समझने की कोशिश कर रहा है, उसे रिसीवर कहते हैं. Easy peasy. Now, for the correct and the successful communication of the information. Now, अगर मैं कार्टोग्राफर हूं बच्चा और आप लोग रिसीवर हो, तो मैंने अगर ब्लू कलर से वाटर बॉडीज बनाई है, ये समझकर कि मैं ब्लू कलर अगर दिखाऊंगी तो इसका मतलब मेरे जो रीडर्स हैं वो वाटर बॉडीज ही समझेंगे. सो आपको भी क्या होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लू कलर वाटर बॉडीज ही है. ये नहीं कि मैंने सोचा कि मैं वाटर बॉडीज दिखा रही हूँ, लेकिन आपने क्या किया? आपने इसे माउंटेन समझ लिया, है ना. सो तो गलत हो जाएगा मैप को समझना और रिसीव करना इंफॉर्मेशन. So, for correct and successful communication of the information, it is important for both the map maker and the map user to understand the elements and the symbols used in the map. So, in order to understand एक successful और correct communication के लिए ये बहुत जरूरी है बच्चा कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो दोनों लोग उस एलिमेंट्स और सिंबल्स को समझ रहे हैं. जैसे इन आवर केस, मैं अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं, आप समझ रहे हो तभी जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपके लिए फ्रूटफुल होगा. नहीं तो ये सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगा अगर आप कोई दूसरे लैंग्वेज को समझते हो और हिंदी और इंग्लिश नहीं समझ पाते. राइट? नाउ सेम इज हियर. सो इट इज वेरी बेसिक. नाउ these are some of the symbols and elements बच्चा that are used in the
in the topographical map. Now you can see blue color shows the water bodies. Now if the blue color is like this, so ये हमें दिखाएगा what, ये हमें दिखाएगा lakes दिखाएगा. If a dot is there, so वो हमें ponds दिखाएगा. अगर एक ऐसा बना हुआ है वो हमें water hole दिखाएगा. और ऐसे ही ये सारी चीजें हमें दिखाती हैं. river और stream कैसे दिखेगी, river और इससे ये टूटती हुई stream. So river, water, streams ये हमें ऐसे दिखेगी. man-made features जैसे कि road, tracks, bridges, ये सारी चीजें हमें ऐसे दिखती हैं. Okay, so these are some of the symbols and the elements that are used in this particular thing. What are landforms? बच्चा landforms आपको पता है, जैसे कि terrace, जैसे कि plateau, जैसे कि hills, जैसे कि depression मतलब कहीं पर थोड़ा गड्ढा हो गया है, erosion, earth wall, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हैं earth forms. Yes, very good. Priyanka Yadav, thank you so much bacha for visiting in. Now let's start with the topographical map. Now the topographical map is a large scale map bacha. It is very important for you to remember that topographical map is a large scale map. It is not a small scale map. स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, जो आप पॉलिटिकल और फिजिकल मैप देखते हो, इंडिया का अगर मैप है, पॉलिटिकल हो या फिजिकल मैप हो, वो होता है स्मॉल स्केल मैप. ठीक है, लेकिन अगर आप अपने रीजन, आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, अगर मैं उस एरिया का एक जूम करके मैप बस उस एरिया का बताऊं, जहां पर आपकी नाली भी दिख रही है, आपका पुलिस स्टेशन भी दिख रहा है, आपके इस एरिया में अगर स्कूल है तो वो भी दिख रहा है, तो वो हो जाता है लार्ज स्केल मैप बच्चा, जिसमें हमें डिटेल में पता चलती है वहां की पॉलिटिकल, फिजिकल, सोशो कल्चरल फीचर्स ऑफ एनी एरिया ऑन द सेम मैप. सो दीज आर द टॉपोग्राफिकल मैप. Okay, is it clear? Okay, now moving ahead, the topographical map are detailed. ये क्या होता है, ये ज्यादा डिटेल्ड होता है बच्चा. इंडिया का अगर आप मैप देखो, आपको नहीं पता चलेगा कि आसाम में एक पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, आसाम के एक गली में किस चौराहे पर कौन सा पुलिस स्टेशन है, आपको नहीं पता चलेगा. आपको बंगाल के कहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है, नहीं पता चलेगा. आपको बिहार में कहाँ पर एयरपोर्ट है, आपको नहीं पता चलेगा. लेकिन टोपोग्राफिकल मैप आपको क्या बताती है, वो डिटेल एरिया को बताती है. डिटेल, एक्यूरेट मतलब सही, एंड साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन देती है ऑफ द वेरियस फीचर्स ऑफ ऑन द अर्थ में जो वेरियस फीचर्स प्रेजेंट है उसे वो बताती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलीफ्स क्या होता है बच्चा, जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, कॉन्टूर्स मतलब जो हमें डिप्रेशंस, ऐसे हाइट दिखा रहा है, एलिवेशन दिखा रहा है कि पर्टिकुलर सी लेवल से वो पर्टिकुलर एरिया क्या है, थोड़ा उठा हुआ है, वो हमें कॉन्टूर्स के द्वारा दिखता है. क्लिफ्स, डिप्रेशंस, नाउ दीज आर द रिलीफ्स, ये हमें इस टोपोग्राफिकल मैप में दिखती है. जैसे कि वेजिटेशन हमें दिखती है, वुडन हो या क्लियर्ड एरिया हो, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा ट्रीज हैं या फिर कहीं पर ट्रीज नहीं है, क्लियर्ड एरिया है. विनयार्ड्स, इसका मतलब जहां पर ग्रेप्स ग्रो हो रहे हैं, ऑर्चिड्स जहां पर एप्पल्स ग्रो हो रहे हैं. सो ये सारी चीजें हमें डिटेल में पता लगती है. Okay, is it clear यहाँ तक? Moving ahead comes the hydrography. What is hydrography? Hydrography मतलब क्या होता है बता, lakes, rivers, streams, swamps, coastal flats, ये सारी चीज, सारे वाटर बॉडीज बच्चा, सारे वाटर बॉडी, चाहे वो दलदल हो, चाहे वो स्ट्रीम हो, चाहे वो एक नहर हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो एक लेक हो, पॉन्ड हो, सारी हाइड्रोग्राफी भी हमें टोपोग्राफिकल पे दिखती है. विनयार्ड बच्चा मैंने बताया, विनयार्ड मीन्स जहां पर ग्रेप्स ग्रो होते हैं, वैसे फील्ड को विनयार्ड्स कहते हैं. एंड सोशल कल्चरल फीचर्स, जैसे कि सोशल कल्चरल फीचर्स मतलब सोशल कल्चरल फीचर्स मतलब बच्चा, सोशल कल्चरल फीचर्स मतलब होता है जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग्स, अर्बन डेवलपमेंट, जो मैन मेड फीचर्स हैं जैसे कि रेलवेज, एयरपोर्ट्स, नेम ऑफ प्लेसेस, ज्योग्राफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, स्टेट्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, फॉरेस्ट रिजर्व्स, एक्सेट्रा.
सो दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये सोशो कल्चरल फीचर्स हैं जो हमें टोपोग्राफिकल मैप में दिखते हैं। आपको समझ में आ गया? टोपोग्राफिकल में हमें क्या क्या दिखेगा, हमें दिखेंगे वहां पर रिलीफ दिखेंगे, हमें वहां पर दिखेंगी हाइड्रोग्राफी दिखेगी, हमें वहां पर दिखता है वेजिटेशन दिखता है, हम लोगों ने वेजिटेशन कर लिया, वेजिटेशन हमें दिखता है, हाइड्रोग्राफी दिखती है और सोशियोग्राफिकल फीचर्स, सोशियो कल्चरल फीचर्स दिखता है। नाउ टोपोग्राफिकल मैप draws on the true coordinate, draws on the true coordinate मतलब क्या है बच्चा, ये एक सही ट्रू एकदम सच कोऑर्डिनेट्स पे बना रहता है। इसका मतलब कि इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द ग्रेटिट्यूड्स, ग्रेटिट्यूड्स मतलब होता है द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड्स। सो जो लॉन्गिट्यूड बच्चा, यू नो व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है, जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो लाइन, लंबी लंबी लाइन क्रॉस कर रही है, इमेजिनरी लाइन, उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और लैटिट्यूड इज द लाइन दैट रन्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट अलोंग द इक्वेटर इज द लेटिट्यूड। सो ये दोनों लाइंस पे, अब अगर इनको इस पर्टिकुलर लाइन पे, आप जानते हो ये कोई डिग्री लैटिट्यूड होगा, ये कोई डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, समझ लो ये 22 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 23 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। सो आप इसमें क्या कर सकते हो, एम आई नॉट ऑडिबल बच्चा, एम आई नॉट ऑडिबल, प्लीज टेल मी एम आई ऑडिबल और नॉट, प्लीज बचाओ बच्चा, मुझे, मैं आपको सुनाई पड़ रही हूँ। Okay, okay, so okay, I am audible. Okay, thank you so much for letting me know. Now, टोपोग्राफिकल मैप बच्चा ट्रू कोऑर्डिनेट्स को दिखाता है जो एक्चुअली में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स है। जैसे कि आप देख लो, ये 22 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 23 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यहाँ पर अगर आप मान लो कि ये 20 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 21 डिग्री लैटिट्यूड है, सो अगर हमें इसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सो इसको एक टोपोग्राफिकल मैप कवर कर सकता है, एक्चुअल लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को वो कवर कर सकता है। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट? ओके, समझ गए ये? नाउ मूविंग अहेड, आवर अर्थ इज एवर चेंजिंग। नाउ ये बात आप जानते हो कि हमारे अर्थ में हमेशा बदलाव आते जा रहा है। द माउंटेन्स आर ग्रोइंग, कहीं पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं पर वाटर बॉडीज का बहाव कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं पर नदी अपना बहाव चेंज कर ले रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है। सो हमारा अर्थ जो है हमेशा बदल रहा है बच्चा। इट्स फिजिकल, उसके फिजिकल फीचर्स और उसके मैन मेड इन्वायरमेंट, जैसे कि रोड्स अलग अलग बन रही हैं, ब्रिजेस, ये सारी चीजें भी बदल रही हैं, आर चेंजिंग वेरी फास्टली। ओके, नाउ बिकॉज आवर इन्वायरमेंट, आवर अर्थ इज चेंजिंग, so it is very important to keep our map updated. So आप क्या, अगर आपने एक मैप बना लिया 2000 में, 2002 में आपने एक मैप बनाया था, सो क्या वो मैप को हम लोग आज भी 2021 में यूज करके बोल सकते हैं कि सारी चीजें वैसी ही होंगी जैसे 2000 में होंगी? नहीं बच्चा, शायद कहीं पर फॉरेस्ट कट गए होंगे, कहीं पर फॉरेस्ट लगाए गए होंगे, कहीं पर पॉपुलेशन की आबादी बढ़ी होगी, कहीं पर घटी होगी, कहीं की नदी की मोड़ बदली होगी, कहीं पर माउंटेन और ऊंचा हुआ होगा। सो ये जो 2002 का मैप है टोपोग्राफिकल, वो ही हम आज भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो गलत हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू अपडेट आवर मैप्स कंटिन्यूअसली एंड रेगुलरली। ओके, सो अगर हमें अपने मैप्स को अपडेट करना है, सो हमें रेगुलर एंड पीरियोडिक सर्वे करना होगा।
रेगुलर मतलब लगातार, और हर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पीरियोडिक सर्वे करना होगा, जिसमें हम जानते रहेंगे कि उस एरिया में क्या बदलाव हुआ है। अगर आप एक छोटा सा गांव ले लो बच्चा बिहार का, अगर मैंने एक छोटा सा गांव ले लिया बिहार का, तो उस बिहार के उस गांव में हो सकता है 2002 में एक भी स्कूल ना हो, लेकिन आज 2021 में वहां पर हो सकता है 2 स्कूल खुल गए हों, एक पोस्ट ऑफिस बन गया हो, एक बैंक बन गया हो। सो ये क्या है, ये चेंज है। सो इस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए हमें वहां का रेगुलर और पीरियोडिक सर्वे करते रहना बहुत जरूरी है। नाउ पहले के टाइम पे दिस पर्टिकुलर सर्वे वाज टाइम कंज्यूमिंग एंड आल्सो अ टीडियस टास्क। टीडीएस मतलब क्या होता है बच्चा? टीडीएस मतलब होता है बहुत मेहनत, बहुत हार्ड टास्क था, बहुत थका देने वाला टास्क था। सर्वे बच्चा क्या होता है? सर्वे मतलब होता है जब जब आप एक पूरे, जैसे कि आपको पॉपुलेशन का सर्वे करना है, तो आप क्या करोगे? आप वहां की जनगणना करोगे, आप वहां का जाकर वहां पर गिनोगे सारे लोगों को, आप सर्वे करोगे, है ना। ऊपर ऊपर से देखकर एस्टिमेट नहीं लगा लोगे, अरे मैंने देख लिया हो सकता है 10,000 होंगे, नहीं। आप वहां जाकर वहां डिटेल में उसे जानोगे, वहां पर लोगों से पूछोगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, और आप फिर उस पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन सर्वे करोगे, राइट। सो दैट इज सर्वे। नाउ अर्लियर दिस पर्टिकुलर टास्क वाज कंज्यूमिंग एंड tedious बिकॉज पहले ये ट्रायंगुलेशन मेथड सर्वे यूज किया जाता था बच्चा। Now, what is a triangulation method survey? Triangulation method survey में बच्चा ट्रिग्नोमेट्री मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा, सो मैं बस आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को यूज करके बच्चा ये लोग क्या करते थे, एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानते थे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री और किसको यूज करके? जियोमेट्री को यूज करके वो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानते थे। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ये अगर समझ लीजिए, ये एक एरिया है ए और ये दूसरा एरिया है बी, इसके बीच का अगर मुझे ये एरिया का लेंथ निकालना है, तो ये लोग उस एरिया से यहाँ तक लाके नापते नहीं थे, बल्कि वो एक ट्रायंगल बनाते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे, और फिर इस एंगल को लेते थे, वो एक्स या थीटा आप ले सकते हैं। फिर वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन थीटा is equals to perpendicular by some people have perpendicular by hypotenuse, मतलब कि perpendicular by hypotenuse p by h, और ऐसे करके वो ये p का वैल्यू निकालेंगे। So this was a very time consuming task। दो जगह का एरिया ही निकालने में बचा, दो जगह का डिस्टेंस ही निकालने में इतना मुश्किल कर रहे हैं। सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत मेहनत वाला टास्क था। नाउ अभी के टाइम पर ये चीज कैसे किया जाता है? रेगुलर और पीरियोडिक सर्वे सैटेलाइट इमेज के साथ किया जाता है। नाउ यू ऑल नो दैट वी यूज गूगल मैप्स। हम लोग क्या करते हैं बच्चा? हम लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं, आप लोगों को सबको पता है ना। गूगल मैप में अगर आप पर्टिकुलर लोकेशन डालो कि ये भैया मुझे डोमिनोज तक जाना है अपने एरिया के, सो आप अपने डोमिनोज तक अपने लोकेशन को जूम करते करते हर रोड, सड़क, मोड़ को भी वो गूगल मैप कैप्चर करता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो एक छोटे एरिया का डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ओके, मूविंग अहेड, what is the history of topographical map? Now during the colonial period, during the colonial period अगर हम देखें तो ब्रिटिश पावर में आ गए थे इंडिया में। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं बच्चा, ये हम पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि टोपोग्राफिकल मैप कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। सो कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश केम इनटू द पावर, ब्रिटिश पावर में आ गए थे, ठीक है। और वो पावर में आके उन्होंने क्या किया, यहाँ के गवर्नमेंट को
और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर में ले लिया। वो यहाँ का गवर्नमेंट भी चला रहे थे और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी वो अपने अंडर में ले लेते। ठीक है, इसके वजह से वही सारे डिसीजंस ले रहे हैं और वही सारी पॉलिसीज भी बना रहे हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल टू सर्व देयर इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इंटरेस्ट। Now what do we mean by colonial बच्चा? निर्मल कुमार, colonial मतलब होता है जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को या किसी दूसरे कंट्री को अपने अंडर में ले लिया था और वहां पर वो पावरफुल हो गए थे, तो उन्होंने उस कंट्री को अपनी कॉलोनी बोला था। उन्होंने बोला कि ये कंट्री मेरी कॉलोनी बन गई है, इसीलिए उस दौर को जब तक इंडिया ब्रिटिश के अंडर में रहा उसको कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। ओके, is it clear? I would like to say good evening to Riya. Thank you so much बच्चा for visiting in. Now आप कॉलोनियल मतलब समझ गए, ठीक है? Now as the ब्रिटिश पावर में आ चुके हैं और उन्होंने कंट्रोल ले लिया है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, अब वो क्या कर रहे हैं, वो सारे डिसीजंस खुद ले रहे हैं, खुद ही वो पॉलिसीज बना रहे हैं ताकि वो खुद का फायदा निकाल पाए बच्चा, वो खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भरपूर पूरा कर पाए। ओके, एज दे वर रूलिंग अ वास्ट एरिया। नाउ इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, राइट? सो क्योंकि वो एक बहुत वास्ट एरिया पर रूल कर रहे थे, सो उनके लिए ये बहुत जरूरी था एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रिकॉर्ड रखना सारे एरिया का, कि किस एरिया में कितनी जनसंख्या है, किस एरिया में कौन सा पौधा उगता है, किस एरिया में कौन सा मिनरल हमको मिल सकता है, क्योंकि उनको हम लोगों से फायदा चाहिए था। आई वुड लाइक टू से हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू अपराजिता। थैंक यू सो मच बच्चा फॉर विजिटिंग इन। ओके, सो वो क्या चाहते थे, वो क्या कर रहे थे, वो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रिकॉर्ड रख रहे थे बच्चा सारे एरियाज का, ताकि उन्हें पता चल पाए कि किस एरिया में क्या चीज हो सकती है या मिलती है। ओके, जैसे कि समझ लीजिए, आप भी जानते हो कि सभी जगह कॉटन नहीं ग्रो हो सकता। ओके, अब उन्हें अगर कॉटन चाहिए एज अ रॉ मटेरियल ताकि वो अपनी कंट्री में जाकर उससे क्लॉथ बना पाए, सो उन्हें जानना पड़ेगा कि किस राज्य के किस कोने में कॉटन ग्रो हो सकता है। सो उसके लिए उनको पूरे इंडिया का सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रिकॉर्ड रखना पड़ा। ओके, now to maximize the profit, they made extensive survey of the India's rich wealth of resources. अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया का रिच वेल्थ जो रिसोर्सेस थी उसका एक्सटेंसिव बहुत लार्ज स्केल पे सर्वे किया। जैसे कि उन्होंने पॉपुलेशन सर्वे किया, उन्होंने बॉटेनिकल दैट मींस प्लांट्स, किस जगह पर कौन से प्लांट्स उगते हैं उसका सर्वे किया, जूलॉजिकल किस जगह पे कौन से जानवर पाए जाते हैं उसका सर्वे किया, लैंड सर्वे कहाँ पर कौन सी मिनरल्स पाई जाती है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड फॉरेस्ट सर्वे, ये सारी सर्वेज वो करते हैं। Okay, now to know the land of India, British East India Company initiated a detailed survey. British East India Company में इंडिया के लैंड को डिटेल तरीके से जानने के लिए और उसका एक्सटेंसिव सर्वे करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक इंस्टीट्यूशन बिठा दिया, दैट इज द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इन 1767। 1767 में उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बिठा दिया, जिसको बाद में जाके सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। Now this particular survey of India is the oldest scientific department of the government of India. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट की बात करें तो यही सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट है इंडिया का। Okay, moving ahead. Vision of British East India Company. British East India Company ये सर्वे के थ्रू क्या करना चाहती थी, उसका क्या विजन था? So first was exploration and mapping of the country's rich resources. वो इंडिया के रिच रिसोर्सेस को, कि कहाँ पर कोल मिल रही है, कहाँ पर कॉटन ग्रो हो सकता है, कहाँ पर
कहाँ पर माइंस बनाई जा सकती हैं, कहाँ पर गोल्ड मिल रहा है, कहाँ पर ब्रॉन्ज मिल रहा है, कहाँ पर कॉपर मिल रहा है, ये सारी चीजें बच्चा जानने के लिए, वो इंडिया के रिसोर्सेज को जानने के लिए वो उसको एक्सप्लोर कर रही थी और उसे डिटेल मैप कर रही थी मैप पे। सो द एवरी रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट विद देयर फुल मेजर्स, ताकि वो सारे रिसोर्सेज को वहां से निकाल पाए और उसको इस्तेमाल कर पाए उसके फुल मेजर तक इन द प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ताकि वो अपने लिए, अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो उसको प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए उसे इस्तेमाल कर पाए। Is it clear? Now, the second is to ensure, to provide base map. Now, they ensure that they will provide base map. I would say good evening to Paridi Junjunwala. Thank you so much, Bacha, for joining in. Now, for expedition and integrated development, अगर उन्हें कहीं पर कोई डेवलपमेंट करनी है, वहां पर कहीं पर उन्हें रेलवेज बनाना है, तो उन्हें जानना पड़ेगा ना उस एरियाज को कि उस एरिया में एक रेलवे बन सकता है कि नहीं, एक ब्रिज बन सकता है कि नहीं, या फिर इरिगेशन कैनल्स बन सकता है कि नहीं। सो दे फॉर द एक्सपेडिशन एंड फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, बच्चा एक्सपेडिशन मतलब होता है कि अगर अगर उन पर्टिकुलर जगहों पर उन्हें रेड करना है, अटैक करना है, या उस जगह को अपने अंडर में करना है, एक्सपेडिशन पर जाना है, एक्सप्लोर करना है उस जगह को, सो उन्हें उस जगह को जानना पड़ेगा। नाउ द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सर्वेयर्स कंप्लीटेड द टास्क ऑफ एक्सप्लोरिंग द अननोन। सो इंडिया का अननोन जगहों को भी इन लोगों ने, इन सर्वेयर्स ने और इन ईस्ट इंडिया कंपनीज के आर्मी ने एक्सप्लोर कर लिया और इसको पूरी तरीके से मैप कर लिया। Okay, now the great surveyor was Mr. Lambton and Sir George Everest, जो complete terrain of India को map कर लेते हैं, complete region of India को ये map कर लेते हैं, right? Now comes the importance and the use of the topographical map. What is the importance and कहाँ कहाँ पर topographical map use होती है बच्चा? पहले हम लोग importance करते हैं। Now we all have understood अभी तक कि topographical map हमें physical, मैन-मेड और सोशो कल्चरल फीचर्स दिखाती है। ये एक लार्ज स्केल मैप है जो हमें वेरियस लेवल्स ऑफ डिटेल्स दिखाता है ऑन देयर स्केल, ठीक है, ये एक लार्ज स्केल मैप है। नाउ अगर हम सीरीज ऑफ टोपोग्राफिकल मैप को जोड़ दें, अगर हम समझ लीजिए एक टोपोग्राफिकल मैप आपका यहाँ का है, समझ लीजिए अगर आप बिहार में हो, सो एक अगर टोपोग्राफिकल मैप आपका बिहार के एक छोटे से गांव का है, उसके बगल वाले गांव का दूसरा टोपोग्राफिकल मैप है, उसके बगल वाले गांव का दूसरा, ऐसे करके अगर आप सारे टोपोग्राफिकल मैप को जोड़ते जाओगे, सो आपको एक लार्जर रीजन का मैप मिल जाएगा। हो सकता है कि आप पूरे बिहार का मैप बना लो इससे, राइट? Now, moving ahead, now these were the series of maps joined together to get a map of a larger region, possible if all the maps drawn on the same scale. But ये तभी possible होगा जब आप सारे maps को बच्चा same scale पे ही draw कर रहे हो। Now ये same scale क्या है? जैसे कि अगर आप सारे maps को 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ही ड्रॉ कर रहे हो, तभी आप सारे मैप को, एक आपने अलग स्केल पे किया है, एक पे आपने लिया है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, मतलब 1 किलोमीटर एरिया ग्राउंड का इज आप उसी एरिया को 1 सेंटीमीटर मैप में दिखा रहे हो। लेकिन आपने दूसरे मैप में ले लिया 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप डिफाइंस 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, सो ये दोनों मैप की साइज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी बच्चा, और ये एक साथ मिलकर एक पूरा एरिया को नहीं बता पाएगा। Understood? Moving ahead, the topographical map have released information. You already have learned about this. ये हमें mountains के बारे में बताता है, ये हमें mountains, hills के बारे में बताता है, ये हमें hydrography के बारे में बताता है, ये हमें vegetations के बारे में बताता है, ये हमें socio-graphical जगह, socio-cultural जगहों के बारे में बताता है in mathematical and statistical format. That means मैथमेटिकल क्यों कहा जा रहा है? अगर आप अपने बुक में अपनी टोपोग्राफिकल मैप को देखो बच्चा, सो आपको
दिखाता है ये पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे ही ये क्या है लाई कर रहा है। सो हम इस पर्टिकुलर एरिया को इस मैथमेटिकल नंबर से लोकेट कर सकते हैं। That's why it is called as it is a mathematical and a statistical format. Okay. Now it has contour lines. ये हमें contour lines दिखाती है, जैसे कि contour lines मतलब कि कितना ऊंचा है ये पर्टिकुलर जगह, height दिखाती है, गहराई दिखाती है, and also other symbols are located on the map. हो क्या? Now, that's why we can say that topographical map are different from topographical map पूरी तरीके से अलग है बच्चा कोई भी small scale map के, जैसे कि chorographic map। कोरोग्राफिक मैप लार्जर स्केल को रीजन को कवर करता है। सो ये टोपोग्राफिकल मैप नहीं है। टोपोग्राफिकल मैप एक छोटे से जगहों को डिटेल में उसकी नाली, उसके लेक्स, उसका पुलिस स्टेशन, उसके रोड, सारी चीजें दिखाता है। सो टोपोग्राफिकल मैप इज डिफरेंट फ्रॉम द chorographic map because chorographic map covers the large area. It is also different from planimetric map because planimetric map do not show elevation, ये ऊंचाई को नहीं दिखाता है। And it is also different from thematic map because thematic map मतलब ये एक particular theme based map रखता है बच्चा। जैसे कि अगर आपका थीम है कि आपको बस लेक्स दिखाना है, तो ये पर्टिकुलर मैप सिर्फ लेक्स दिखाएगा, ये सारी चीजें नहीं दिखाएगा। सो दिस इज थीमेटिक मैप। एलिवेशन क्या है बच्चा? एलिवेशन मतलब एलिवेटर, आपने सुना है एलिवेटर, मॉल्स में एलिवेटर्स लगे रहते हैं, एलिवेटर से आप लोग ऊपर जाते हो, नीचे आते हो। एलिवेशन मतलब ऊंचाई, किसी चीज की एलिवेशन को वो नहीं दिखाता है। ओके, नाउ अब इसका यूज कहां पर है? आपने इंपॉर्टेंस जान लिया, अब नाउ यू विल नो द यूजेस, कहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट इज ये मिलिट्री के द्वारा इनिशियली इस्तेमाल किया जा रहा था टोपोग्राफिकल मैप टू असिस्ट इन प्लानिंग फॉर बैटल। बैटल को प्लान करने के लिए बच्चा, अगर कोई युद्ध पे जा रहा है तो जिस जगह पर युद्ध हो रही है उस एरिया को जानना बहुत जरूरी है। सो प्लानिंग अ बैटल एंड फॉर डिफेंसिव एम्प्लेसमेंट। डिफेंसिव एम्प्लेसमेंट बच्चा, अगर अपने आप को हम डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम बैटल पे हैं और हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, सो हमें किस डायरेक्शन में भागना है और कहां पर हमें छुपना है ताकि हम अपने आप को डिफेंड कर पाए, वो चीज जानने के लिए फॉर दैट डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन इंफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को जानने के लिए बच्चा दिस इंफॉर्मेशंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड वाज इट इज यूजफुल फॉर बाय हाइकर्स। अब आप देखोगे ऑलमोस्ट सब लोग टोपोग्राफिकल मैप यूज करते हैं। हाइकिंग पे कोई जो लोग जा रहे हैं या कैंपर्स कैंप लगा रहे हैं, स्नो स्कीयर्स, सिटी एंड कंट्री प्लानर्स, फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस पे अगर है लोग, माइनर्स, लॉगर्स, हाईवे प्लानर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रैवलर्स, सर्वेयर, जियोलॉजिस्ट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सारे लोग बच्चा अपने अपने फील्ड में, अगर आप समझ लो माइनर को ही ले लो, उसे कैसे पता चलेगा कि कहां पर उसे माइनिंग करनी है और कितनी दूर तक करनी है जब तक वो अपने एरिया को अच्छी तरीके से नहीं जानेगा। हाईवे प्लानर, एक हाईवे प्लानर कैसे हाईवे बनाएगा अगर वो अब उस एरिया को नहीं जानेगा। हाइकर, हाइकिंग करना मतलब बच्चा किसी फॉरेस्ट में जब आप ऐसे ही घूमने के लिए, एक्सपेडिशन पे आप ऐसे ही जाते हो एक्सप्लोर करने के लिए और आप अलग अलग माउंटेन्स पे, थोड़े बहुत ऊंचे ऊंचे हिल्स पे चढ़ते हो, तो उसे हाइकिंग कहते हैं। ऑल्सो ये यूज किया जाता है कॉमन मैन, हम लोग जैसे लोग भी टोपोग्राफिकल मैप्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड डोमिनोज, इन ऑर्डर टू फाइंड केएफसी, इन ऑर्डर टू फाइंड लोकेट योर स्कूल। सो हम लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ अ टोपोग्राफिकल मैप, राइट। मूविंग अहेड comes the scale. Now the last topic of our today's session is scale. Okay, सर्वेयर्स, ललिता कुमारी, सर्वेयर्स कौन होते हैं बच्चा? जो सर्वे कर रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना कि ये लोग सर्वे करते हैं, जैसे कि अगर कोई पॉपुलेशन का सर्वे कर रहा है या फिर कोई उस जूलॉजिकल सर्वे कर रहा है, उसे सर्वेयर कहते हैं।
Understood. Now, moving ahead to keep the distance in each part. Now, आप लोग जानते हो कि हमारा जो मैप है और जो हमारा अर्थ है उस दोनों के साइज में डिफरेंस है। हमारा मैप एक छोटा साइज का छोटे साइज में वो चीज को दिखाता है जो एक्चुअली में बहुत बड़े एरिया में है। ये चीज बहुत क्लियर है, ये बहुत बच्चे वाली चीज है, आप लोगों को पता है ये चीज, है ना। नाउ to keep the distance in each part of the map accurate and correct बच्चा, लेकिन हालांकि हालांकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो क्या हम लोग कोई भी छोटे स्केल पर बना सकते हैं? क्या हम लोग अपने से ऐसे करके खींच के अपना मैप बना सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं एक्यूरेटली इसी जगह पर? अगर हम लोग असल में भी इंडिया का अर्थ का मैप देखें तो एकदम एग्जैक्टली इसी जगह पर इंडिया लाई करेगा? नहीं, हमें उसके लिए स्केल चाहिए होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्केल चाहिए होता है टू लोकेट द प्लेस एक्यूरेटली and correctly. A ratio is required through which distance of the earth is reduced to the map surface. एक रेशियो बच्चा, एक रेशियो की जरूरत हमें पड़ती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर आप समझो कि हमको 1 किलोमीटर, मैं क्या करना चाहती हूँ, 1 किलोमीटर जो अर्थ पे है, जो अर्थ पे एक्चुअल 1 किलोमीटर है, उसे मैं मैप पे दिखाना चाहती हूँ 1 सेंटीमीटर पे। सो मुझे क्या फॉलो करना होगा? यही स्केल फॉलो करना होगा थ्रू आउट मेरा जितना भी मैप है उसमें मुझे यही स्केल को फॉलो करना होगा। कहीं मुझे अगर 2 किलोमीटर दिखाना होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। सो ये रेशियो यूज किया जाता है इन ऑर्डर द डिस्टेंस ऑन द अर्थ को रिड्यूस करने के लिए टू दैट ऑफ द मैप सरफेस। ओके ओके, सुजीत गुप्ता, डिड यू अंडरस्टैंड बच्चा? You said no ma'am, so are you getting me what I am asking you? So the cartographer uses scale for drawing maps. So इसके लिए वो लोग ऐसे ही नहीं randomly कुछ भी खींच के मैप बना देते हैं बच्चा। So cartographers जो मैप बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग scale यूज करते हैं to draw the map. Now what is a scale? Scale is the ratio between the distance of the 2 points on the map। मैप का जो मैप पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? अगर मैप पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस बच्चा है 5 सेंटीमीटर, दिस बाय द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, और इसी दोनों का डिस्टेंस एक्चुअल अर्थ पे कितना है? अगर ये समझ लो 500 किलोमीटर है, सो दिस इज द रेशियो जिसमें वो स्केल लाएंगे। ओके Okay. Thank you so much, Sujit Gupta. Thank you so much. Now, the scales depicted on the map is three different ways. जो स्केल बच्चा मैप पे हमें दिखाता है, स्केल मैप पे, वो 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के आपको अलग अलग टाइप के स्केल मिल जाएंगे। पहला इज द स्टेटमेंट स्केल, दूसरा इज द ग्राफिकल स्केल एंड तीसरा इज द रिप्रेजेंटेटिव स्केल। ठीक है, बहुत इजी है, आपको एकदम स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा। वर्बल या फिर ग्राफिकल स्केल क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस बाय गिविंग अ स्टेटमेंट। ये क्या करता है? एक्सप्रेस करता है बाय गिविंग अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट देकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, अगर 1 सेंटीमीटर बच्चा ऑन द मैप, अगर मैप में 1 सेंटीमीटर, समझ लो ये मैप है हमारा, मैप में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ये कितना दिखा रहा है? ये ग्राउंड पे, समझ लो यहां से मेरे घर से आपके घर की दूरी 1 किलोमीटर की है, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस। अब लेकिन मुझे वो मैप पे दिखाना है, सो वो मैं 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में मैप पे दिखाऊंगी। सो दिस is the ratio statement. Now cartographer may give a statement as 1 centimeter is equals to 1 kilometer. इसका मतलब 1 centimeter on the map is equal to actual 1 kilometer on the ground, या फिर 1 centimeter is to 1 kilometer.
Okay, okay, Ajay Singh, you did not understand the scale वाला part बच्चा. Scale क्या है? Scale is very simple. मैप एक छोटा फॉर्म है पूरे अर्थ का एक छोटा फॉर्म है मैप. अब हम लोगों को अगर समझ लीजिए इंडिया से लेकर हमें ऑस्ट्रेलिया तक की दूरी बतानी है, तो क्या हम अगर इसकी दूरी समझ लीजिए 10,000 किलोमीटर है, तो क्या आप 10,000 किलोमीटर मैप में भी बनाओगे खींच खींच के 10,000 किलोमीटर? नहीं. तो आप क्या करोगे, इसको हो सकता है 10,000 किलोमीटर को आप 10 सेंटीमीटर में दिखा दो, है ना. तो ये चीज को हम स्केल कहते हैं. अब स्केल डिफरेंट तरीके से दिखाए जाते हैं, जैसे कि एक होता है स्टेटमेंट स्केल. जब ऐसा आपके मैप में दिया हो तो इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप क्या पढ़ोगे बच्चा, इसको आप पढ़ोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर on the ground. Hello Yashita. Bacha, I will be soon uploading the notes of the chapters. Okay. Because I was preparing for your session on urgent demand. I was preparing because I know people are going through examinations, so I prepared this lesson. That's why I was not able to upload the notes on the Telegram app. I will be by tonight. I will be uploading the notes. If that works for you. Okay, now moving ahead, the second is the graphical or the linear scale. अब graphical या linear scale क्या होता है बच्चा, आपने बहुत मर्तबा देखा होगा ऐसे करके आपके टोपोग्राफिकल मैप में ऐसे करके आपको स्केल्स मिलते हैं, ठीक है, ऐसे करके आपको स्केल्स मिलते हैं. सो ये स्केल्स क्या है, ये स्केल्स क्या है, ये स्केल्स है हमारे ग्राफिकल या लीनियर मतलब वन लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे जो स्केल है. नाउ इन ग्राफिकल और लीनियर स्केल अ लाइन इज सब डिवाइडेड, एक लाइन को सब डिवाइड किया जाता है. जैसे आप देख रहे हो ये लाइन है, इसको अलग अलग हिस्से में तोड़ा गया है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केल टू रिप्रेजेंट सर्टेन डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस. सो अर्थ सरफेस में कुछ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस लाइन को तोड़ा जाता है. Now distance between places read directly along this graticulated straight line. So इस longitude और latitude straight line पे हम लोग इसके distance को read कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर में it denotes the kilometer और नीचे में it denotes the meter. So इसका मतलब इतना kilometer on the ground is represented by इतना kilometer on the scale. Okay. Is it clear? Now, line is initially divided into primary division. ये प्राइमरी डिवीजन है 0 से 1 तक, ये बड़ा वाला डिवीजन, फिर एक बड़ा वाला अगर डिवीजन आएगा. सो ये प्राइमरी डिवीजन है बच्चा, और इसके बीच में अगर छोटे छोटे डिवीजन किए जा रहे हैं सो वो हो जाते हैं सेकेंडरी डिवीजन, जब प्राइमरी डिवीजन को और काटा जाता है. नाउ द लास्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको कि हम लोग RF स्केल भी बोलते हैं. Now this is shown by mentioning the ratio and the fraction. ये हमें रेशियो और फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलता है, जिसमें कि न्यूमरेटर जो होता है बच्चा, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा. सो न्यूमरेटर हमें दिखाता है मैप का डिस्टेंस, दैट इज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, और डिनोमिनेटर हम लोग को दिखाता है एक्चुअल डिस्टेंस दैट इज 1 किलोमीटर. लेकिन ये क्या होना चाहिए, दोनों ही चीजें सेम यूनिट में होना चाहिए बच्चा. both the map distance and the actual distance is on the same distance. It should be on the same distance. जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर इस पे है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप और 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड है, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर. सो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर कट हो जाएगा, 1:1 लाख हो जाएगा बच्चा. एंड या फिर क्या हो सकता है 1/1 लाख हो सकता है. So this is refractive fraction scale. Now, refractive fraction based on RF, representative fraction
It can be the topographical sheets are of various size. तो हमें topographical sheets मतलब अलग अलग साइज की मिलती है, जैसे कि मिलियन शीट और डिग्री शीट, या फिर हाफ इंच शीट और क्वार्टर इंच शीट. ये दो तरीके की शीट है. मिलियन शीट क्या होती है? मिलियन शीट इज जब हम लोग टोपोग्राफी में यूज करते हैं. टोपोग्राफिकल मैप इज मेड ऑन 1:1 मिलियन RF. 1:1 मिलियन RF को बच्चा जब यूज करेंगे तो उसे मिलियन शीट्स कहते हैं. नाउ कवर्स एरिया ऑफ 4 डिग्री लैटिट्यूड एंड 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ये कौन सा एरिया को कवर करता है? 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड के एरिया, इस दोनों के बीच के एरिया को ये कवर करता है. ठीक है. नाउ इस पर्टिकुलर मिलियन शीट को हम सब डिवाइड कर सकते हैं, मतलब और तोड़ सकते हैं 16 पार्ट्स में. अब समझ लो ये हमारा टोपोग्राफिकल शीट था मिलियन शीट्स को. इसे हमने क्या कर दिया? 16 पार्ट्स में तोड़ दिया बच्चा. और ये जो एक पार्ट है, ये एक पार्ट इज नोन एज डिग्री शीट्स, जहां पर 1 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करेगा ये एरिया. और ये रिप्रेजेंट किया जाता है 1:2,50,000 RF पे. 2,50,000 RF पे. Is it clear? Now the second kind is the half inch topographical map that is drawn on 1:1 lakh, covers about कितना latitude? 30 minutes. बच्चा इसको 30 डिग्री मत पढ़ लेना, 30 minutes और लैटिट्यूड अबाउट 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड पे ये कवर करता है. ना आपको पता है डिग्री से जो छोटा होता है बच्चा, जैसे कि अगर समझ लो ये 4 डिग्री है और ये 5 डिग्री है, लेकिन इसके बीच में भी तो जगहें हैं, तो ये जगह क्या होगा? ये मिनट्स में डिवाइड हो जाता है. 4 डिग्री 0.1 मिनट हो सकता है और उसके छोटा सेकेंड होता है. ओके, सो ये 30 मिनट्स लैटिट्यूड और 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड को कवर करता है. नाउ दैट हाफ इंच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 15 मिनट्स टू 15 मिनट्स लॉन्गिट्यूड, दैट इज नोन एज क्वार्टर इंच. ओके, thus as ratio between the actual distance and the map distance decreases. Now जब भी जो मैप का एक्चुअल डिस्टेंस और मैप के डिस्टेंस का अगर रेशियो डिक्रीज होगा बच्चा, अगर जैसे कि एक है 1 सेंटीमीटर बाय 1 किलोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर. ठीक है, अगर एक ये है और दूसरा ही मैप है हमारा 1 सेंटीमीटर इज बाय 2 किलोमीटर. ठीक है, इसका मतलब 2 लाख सेंटीमीटर. सो हमें डिटेल ज्यादा किस में मिलेगी? जब 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दिखाएगा, रादर देन 2 किलोमीटर 1 ही सेंटीमीटर में हम लोग देख रहे हैं. सो उससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? उससे हम लोग बोलते हैं जैसे ही रेशियो डिक्रीज होगा वैसे ही डिटेलिंग क्या होगी? इंक्रीज होगी. Here I will wrap up my session and we will do the measuring distance with the scales and the symbols in our next session. Symbols हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे और किस तरीके से मेजर किया जाता है स्केल को, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. Why they are called as minutes बच्चा? That is a technical term, that's why they are called as minutes. Now with this I will be ending up my session right here bachcha. Diksha, if you haven't understood the linear scale, please go once again with the session and you can understand then there because it has long ho gaya hai session mera. अब मुझे B part भी आपके लिए लाना है बच्चा and also the exercises, so I have to work really hard. Now what I can do, now you can always post me anything that you want on my comment as it was demanded by you people to bring the first chapter. That's why I am posting this chapter इतना जल्दबाजी में. And you can also go ahead कि आपको क्या चाहिए आप वो बता सकते हो. आपको मेरा सेशन कैसा लगा? You can post it down. Now if you are new to my channel, subscribe to it. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा. यू कैन फॉलो मी ऑन बोथ द साइट्स. टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे सारे पीडीएफ्स और नोट्स और आपको अपकमिंग सेशंस के भी बारे में मिलेगा. आज रात से आई विल स्टार्ट अपलोडिंग इट. And Instagram page, you will be updated by me if you want to know more about me and how I am as a person. So you can go and look out to there also. And Diksha, thank you so much for letting me know. I will surely bring Bacha sessions on chapter 2 and chapter 3 as well. Okay. Now, if you liked my video, hit the like button and also do share with your friends. Not only friends of your school or your state, you can share with anyone who is studying in ICSE board. So that will help the channel to grow and that will encourage me to bring more contents. Right? Thank you so much, Bacha. Thank you so much. Yes, Anu, I will bring the session on chapter 4 as well. Yes, and million sheet बच्चा आप फिर से एक बार जाकर सुजीत आप million sheet देख लेना. Thank you so much बच्चा for joining in. Now I will take a goodbye. Be safe, be healthy at your houses, and please follow the COVID protocols and do get vaccinated. Thank you so much for joining in. We will be meeting very soon once again.